हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। Needless to say that it is one of the most important chapter for all the exams. ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है and this chapter is an important one, and for many of you biotechnology can also be one of your career options in future. और ये एक ऐसा चैप्टर है वेयर द स्टूडेंट ऑल्सो नीड्स टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का इसमें होना बहुत जरूरी है बिकॉज हर कॉन्सेप्ट इस पे नया है। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट all the students, those who have come to this video, to watch the video till the end. एक बार खाली इस वीडियो को भले ही आप स्पीड बढ़ा दे देखना बनता है, सो दैट बिकॉज मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ समझा पाऊं rather than just going by the bookish definitions and the bookish flow. एंड देखते हैं मेरा कोशिश कैसा रहता है, आपको समझ आता है कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थिंग कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। New thing means new concept for you, but biotechnology is not anything new. Now, biotechnology नाम पे ही लिखा हुआ है बायो एंड टेक्नोलॉजी, यानी यहां टेक्नोलॉजी एंड सम लिविंग थिंग का मेल बंधन है। क्लियर? तो processes like making of curd, making of bread, fermenting to produce alcohol and all those things, ये बहुत 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 युगों से हो रहा है। तो ideally that is also biotechnology because we are using the organisms, the microorganisms for our purposes. Modern biotechnology क्या है? Modern biotechnology is the technology that revolves around the rDNA technology या the recombinant DNA. Now, what is rDNA technology? What is recombinant DNA? These are new और ये हम समझेंगे। समझने से पहले let us go through the old and the new definition of biotechnology. Okay? मैं वो डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स से दिखाती हूँ। Now student, here in your screen you can see it. Old definition says कि biotechnology deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce product and processes useful for humans. And the new definition of biotechnology as given by European Federation of Biotechnology defines it as integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. Now, modern biotechnology is based on two core principles, two main legs. What are they? Genetic engineering and bioprocess engineering. Genetic engineering, the first principle, what does it mean? नाम पे है क्या? जेनेटिक और इंजीनियरिंग, यानी यहां इंजीनियरिंग का काम किस पे होगा? जेनेटिक मटेरियल पे। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है? दो ही है, वन इज डीएनए, अनदर इज आरएनए। क्लियर? तो इन्हीं दोनों को लेके, कुछ टेक्नोलॉजी को लेके कुछ करना, सो दैट वी कैन ऑल्टर देम, चेंज देम टू फिट इन genes or genetic material that we desire and then get the products from them for our use. अब genetic material DNA RNA दोनों ही है, but we in our chapter will be dealing with DNA only. अब DNA को जब हम alter करते हैं, how do we alter the DNA?
डीएनए प्लस डीएनए, यानी दो सोर्स से डीएनए को लाके लगाना इज ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए, and the DNA that is formed after that is called rDNA या recombinant DNA. क्लियर? ये हेटेरोलॉगस डीएनए है बिकॉज इसका ओरिजिन अब एक नहीं रहा, इट इज नाउ coming from two different sources. Now, not just two different sources, two different organisms altogether. अगर हम सिर्फ two different sources कहेंगे, that is not going to be right, because sexual reproduction में भी the DNA is coming from two different individuals. So here it is actually two different organisms altogether. Mark the difference, okay? Now that is called rDNA, और rDNA को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है दैट इज कॉल्ड rDNA टेक्नोलॉजी. क्लियर? अब डीएनए को हम ऑल्टर करके वी ट्राई टू इम्प्रूव इट फॉर आर जो हमें चाहिए उससे. नाउ हाउ डू डीएनए फंक्शन? डीएनए करता क्या है, उसका जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है इट एक्सप्रेसेस इट वाया प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. भले ही वो एक पिगमेंट हो या एंजाइम हो या प्रोटीन हो, these molecules do the groundwork for the phenotypical expression. Clear? तो rDNA से जो हमें प्रोसेस प्रोडक्ट्स मिलता है, वी आर डूइंग इट इन अ लैब और एट अ कमर्शियल स्केल. तो इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जो स्टेराइल कंडीशंस चाहिए, एंड आफ्टर द प्रोडक्ट इज मेड, दे आर cleansing, their processing, packaging, that all thing comes under the second principle or second leg of biotechnology, which is bioprocess engineering. Clear? हम इन दोनों को अब पहले देखेंगे, but let's begin with genetic engineering. Okay? Purpose of genetic engineering is to make the recombinant DNA using the recombinant DNA technology. Let us first understand this technology in two phases. सबसे पहले हम इस इंजीनियरिंग, इस टेक्नोलॉजी के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, we will know that, and after that we will know the process or the steps and sequences in which these steps are carried. क्लियर? कंपोनेंट और प्रोसेस मतलब क्या? जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं, नो इट कैन बी अ बेकिंग डिश, इट कैन बी अ राइस बेस्ड मील, सब्जी, नॉन वेज, कुछ भी. कंपोनेंट्स आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स. कंपोनेंट इज द नॉलेज ऑफ कि हम हीट को किस फॉर्म में यूज करेंगे, हम माइक्रोवेव करेंगे, फ्लेम यूज करेंगे या ओवन यूज करेंगे, ऑल दोस थिंग्स, राइट? एंड प्रोसेस में हम क्या, जैसे हम जब कुछ खाना बना रहे हो तो पहले किस सब्जी को डालना है, नमक कब डालना है, मसाला कब डालना है, व्हाट इज द सीक्वेंस, दैट इज व्हाट इट मीन्स. सेम थिंग यहां भी. ओके? आ रहा है समझ बच्चों? नाउ लेट्स बिगिन विथ कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स को समझने के लिए लेट मी गिव यू अ hypothetical example. Say I have a friend who is white. उसके blonde hair है. Now she wants the black hair color for herself naturally, not dye. So according to our DNA technology, how can we help her using our DNA technology? मेरे जीनोम में जो जीन है which codes for the black color, take it out, give it to her genome. Clear? So the gene that is being taken out from me, from my genome, that is the gene of interest for her, and she is the host. तो ये तो हो गए दो कंपोनेंट्स. ओके? पहले हम कंपोनेंट्स को समझते हैं ना. कंपोनेंट्स में gene of interest, vector and host is one set of component. The second set is going to be the enzymes. Okay?
थर्ड कंपोनेंट में आई वुड से सिलेक्टेबल मार्कर, तो let us first begin with this group of component. Okay, now इस ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को समझने के लिए आई एम गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. से आई हैव अ फ्रेंड हु इज व्हाइट and who has blonde hair or golden hair. Now she wants black color of Indian hair naturally. तो if we are using our DNA technology, हम क्या करेंगे, मेरे जीनोम से उस जीन को निकालेंगे which codes for the black color and we will give it to her. So the gene that codes for the black color is the gene of interest here. Clear? And she or her genome or her cell is the host. अब let me ask you, अगर मैं सीधा वो जीन उठा के उसके सेल पे डाल दूं, will it work? The answer is no. Why? Because वो जीन का जो जीन है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, that is not designed to self-replicate itself inside any other host cell. Reason number one. Reason number two, कि it does not have the capability to use the cellular or enzymatic machinery of the host cell. Third is कि the host cell will treat the DNA as a threat, as a foreign object, and it will start degrading it. So these are the three challenges. आ रहा है समझ? To take care of these three challenges, हम लाते हैं बीच में एक वेक्टर. क्लियर है? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर में डालते हैं और उस वेक्टर को होस्ट सेल में. Now, as the host cell divides, so does the vector. और वेक्टर में जो जीन्स है, they will start giving their phenotypic expression. Now, phenotypic expression at the molecular level, how is it done? By producing proteins. आपने molecular biology of inheritance में पढ़ा है, right? DNA का काम ही है, they express themselves through the by producing the proteins. तो host cell से फिर हम proteins को निकालेंगे. Clear है? If we see from here to here, all the steps that are involved are resulting in what? Multiple copies of this or multiple copies of the gene of interest. Thus, can we say कि all these steps fall under gene cloning? Yes. So that is what gene cloning is. Okay? अब gene of interest क्या है हमने देख लिया. आगे चल के इन द प्रोसेस वी विल सी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे आइसोलेट करते हैं. पहले हम कंपोनेंट सेकंड फेज में वो हम देखेंगे. नाउ अब हम वेक्टर को समझते हैं. आइडियली व्हाट इज theoretically what is a vector? Anything that can transfer a thing from one place to another. उस हिसाब से तो स्विगी, जोमेटो, इनके लिए डिलीवरी करते हैं, दे आर ऑल्सो वेक्टर्स, वी कैन से, खाना को वहां से लाके हमें डिलीवर कर रहे हैं. सो हियर वेक्टर मीन्स व्हाट? जो हमारे लिए एट द वेरी मॉलिक्यूलर लेवल स्विगी, जोमेटो का काम कर पाए. राइट? नाउ मॉस्किटो जो हमें काट के हमें मलेरिया देता है, that is also a vector because it is carrying the germ inside. So for our experimental purposes, what are the features that we need to see in a vector? मैं आपको पॉइंट्स मेरे नोट से दिखाती हूँ, वही एक्सप्लेन करूंगी. So theoretically speaking, any molecule of DNA that can replicate itself inside a host cell can work as a vector. So this is going to be the most important criteria. Criteria number 1. Additionally, it should be small in size for easy incorporation
inside the host cell. अब होस्ट सेल जो है उसमें भी उसका न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स है, वो हमारे लिए खाली तो नहीं बैठा हुआ होगा. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डिमेंशंस ऑफ द वेक्टर. क्लियर? द वेक्टर शुड हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, इन द MBOI चैप्टर. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो है जिसके बगैर डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता. दिस इज द स्पॉट और दिस इज द साइट इन द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस. और ये साइट अगर नहीं होगा तो वो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन भी नहीं कर पाएगा. क्लियर? Then it should have unique restriction sites. Restriction site is something new for you और हम सीखेंगे. और ये restriction site खाली यूनिक ही नहीं, इनके नंबर्स भी बहुत कम होने हैं. ओके? Then it should have selectable markers. Selectable markers क्या है, ये भी नया है और ये भी आगे चल के हम देखेंगे. Now ये तो हो गए features of vector. What are the commonly used vector in biotechnology? सबसे कॉमन है plasmid. Other than this, there are some other vectors also, but the most common is this. अब plasmid क्या है? Any student who is watching this, if they know, I would request कि वीडियो को पॉज करके कमेंट पे लिखें. Anyways, double-stranded DNA molecule, one or single in number and circular in shape. खाली इतना कहने से होगा? अगर हम खाली इतना ही कहते हैं, दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के जो जीनोम होते हैं उनका भी यही फीचर्स होता है. आगे चल के डिफाइन करते हैं. That are capable of autonomous replication. यानी ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करते, ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर पाते हैं. एंड इन नेचर वी फाइंड इट इन सम बैक्टीरिया. अब ये सम बैक्टीरिया ये हो गया इनका प्रोकैरियोटिक सोर्स, एंड इन सम यीस्ट. ओके, तो ये हो गया इसका यूकेरियोटिक सोर्स. नाउ प्लाज्मिड आपको क्या लगता है, नेचर पे जैसा होता है या एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसा होता है वैसा ही उठा के हम यूज करते हैं? द आंसर इज अ बिग नो. व्हाई? बिकॉज इन नेचर दिस प्लाज्मिड्स कैन बी ऑफ ह्यूज साइज. देयर साइज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1000 base pair to 100,000. 1 kilo base pair means 100,000. Okay, base pair या 1 lakh base pair. तो इतना बड़ा अगर हम यूज करेंगे प्लाज्मिड, होस्ट सेल में घुसाना प्रॉब्लम होगा. Moreover, the plasmid in nature is not exactly suited for our needs. तो सबसे पहले इसको काट छाट के we have to shorten it and then we have to customize it. How do we customize? By adding selectable markers, by adding restriction in sites and so on. Okay, and one of the most common or widely used plasmid is PBr322. It is an artificially created plasmid और इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो इस कंपोनेंट सिस्टम में आगे हम होस्ट को देखते हैं. What is the host? ना होस्ट क्या है? होस्ट इज द टारगेट ऑर्गेनिज्म जिसपे हमें इंप्रूव करना है या जिसपे हमें वेक्टर को डाल के मल्टीप्लाई कराना है. तो होस्ट कैन बी एनी सेल, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट. यूकेरियोट में इट कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ प्लांट और एन एनिमल. क्लियर? बट फॉर एनी सेल टू क्वालिफाई एज होस्ट, उस सेल के भी कुछ फीचर्स होने हैं. व्हाट आर दे? लेट्स सी. नाउ
A host can either be a prokaryote or eukaryote. Ideally, it should allow easy entry of the rDNA into the cell. Consider the recombinant DNA as its own and not as foreign so that it does not degrade. Now, in prokaryote, most widely used host is E. coli and Bacillus subtilis. Now, समझ में आया the three ingredients of the first component. अब gene of interest, let's see ये DNA है. यहां से हम थोड़े से DNA को काटेंगे या वो उस जीन को जो हमारे मतलब का है. Then we have a plasmid. तो प्लाज्मिड को भी काटना है, काट के उसको घुसाना है, राइट? तो काट के जब उस डीएनए को घुसाएंगे, द वेक्टर बिकम्स लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट द आर डीएनए लुक्स लाइक. सो वेक्टर बिकम्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिफोर बीइंग गिवन इनटू द होस्ट. ओके, अब आते हैं द सेकंड कंपोनेंट पे, विच आर एंजाइम्स. नाउ एंजाइम्स क्यों चाहिए? So we are cutting the gene here, we are pasting the gene here. इसको आप बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे विजुअलाइज कीजिए. हाउ डू वी डू दैट? साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे कैंची लेके यूं काटते नहीं है. दैट इज वेयर एंजाइम्स कम टू प्ले. ओके, सो लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड. So the first category of enzyme that we require is called restriction enzyme. ये restriction enzyme करता क्या है? It cuts the DNA at specific location. Specific location मतलब क्या कि DNA molecule को जहां मर्जी वहां नहीं काटेंगे. These enzymes have some special sequences of DNA जहां पे ये जाके it can act and it can break the phosphodiester bonds. How does it work? By breaking the phosphodiester bond. और जिन at specific DNA sequences, जैसे हम अगर कोई सब्जी काट रहे हो तो फॉर डिफरेंट सब्जी वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कटिंग. हम हर सब्जी को अलग से पकड़ते हैं, उसका वीक पॉइंट निकालते हैं, एंड दैट इज वेयर वी मूव आवर नाइफ. सिमिलर थिंग विद दिस एंजाइम्स ऑल्सो. वो अपने लिए वो स्पॉट ढूंढते हैं एट विच अकॉर्डिंग टू देम इज द वीक स्पॉट ऑफ द डीएनए. वहां पे जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच इज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड, उसको तोड़ते हैं. नाउ द सीक्वेंस वेयर दे गो एंड कट इज कॉल्ड restriction site, recognition site या recognition sequence. बहुत जगह पे ये वर्ड सारे इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज. ओके, नाउ ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस एंजाइम के भी दो तरीके हैं, मैं आपको मेरे नोट्स पे दिखाती हूँ. ओके, so nucleases are the enzyme which cleave nucleic acid by hydrolyzing the phosphodiester bond. There are two types. Exonuclease. Exonuclease वो है which remove nucleotides one at a time, either from the fifth or the third end. Endonuclease वो है जो internal phosphodiester bond को काटता है. Okay? Now this endonucleases को ही restriction endonuclease या restriction enzyme कहा जाता है. क्या हो? Now restriction enzyme is actually of three types: RE1, RE2, RE3.
आउट ऑफ दिस खाली RE2 टाइप जो एंजाइम्स होते हैं ये ही हम अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एंड RE2 ही वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसके लिए द DNA सीक्वेंस हैज टू बी पैलिंड्रोमिक। इनका जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है दैट इज 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग and it is palindromic in nature. Palindromic in nature means what? Which spells same whether you spell it from left to right या right to left, such as the word madam, MADAM, MADAM. Clear? दूसरी खासियत इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये है कि ये हमेशा, ये तो एक्सोन्यूक्लियस हो गया, मैं यहां दिखाती हूँ, जो क्लीव करते हैं इट इज नॉट ऑलवेज नेवर एट द सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये दो तरीके के कट्स देते हैं, एक ब्लंट एंड दूसरा स्टिकी एंड। नाउ वेदर द कट्स दे गिव इज ऑफ ब्लंट या स्टिकी, इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली दीज डायग्राम्स, यहां आपको मिलेगा कि आप देखिए इस तरफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कम है, इस तरफ ज्यादा, यानी बिल्कुल सेंटर पे नहीं काटते। सेम हियर। अब इफ द कट इज स्ट्रेट एंड इट क्लीव्स इनटू टू पार्ट्स स्ट्रेट, तो हमें ब्लंट एंड मिलता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ कट। हमारे मतलब का जो कट है दैट इज वो इस तरह से काटता है विच इज कॉल्ड स्टैगर्ड कट। बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं होता, थोड़ा सीधा जाके न्यू और फिर अगले स्ट्रैंड को थोड़ी दूर जाके काटता है। एज अ रिजल्ट जो हमें दो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वहां पे हमें ओवरहैंग ऑफ एक एक स्ट्रैंड मिलता है। नो, एंड सच स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड स्ट्रैंड्स विद द स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड नाम क्यों है? क्योंकि ये जो एंड्स है दे आर रेडी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फिर से फॉर्म अ डबल बॉन्ड, ओके, डबल स्ट्रैंड। व्हाई आर दे सो रेडी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स? बिकॉज यहां पे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है। क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैगर्ड कट, ओके। अब एक्सोन्यूक्लियस कैसे काटता है? जस्ट सी इट इन द डायग्राम, साइड से दो दो न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते जाते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयर इट्स हायरार्की कि विच ग्रुप ऑफ एंजाइम दे बिलोंग टू। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। RE2 enzymes जो होते हैं they have this need of a palindromic sequence for their restriction sites, okay, and one of the common such enzyme is EcoR1। तो EcoR1 का जो सीक्वेंस है, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट, इट इज पैलिंड्रोमिक इन नेचर। तो इसका रिकॉग्निशन साइट कुछ यूं दिखता है, GAATC, एंड अगेन यहां पे ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द फिफ्थ साइड, ओके। GAATC ये काट के स्टिकी एंड्स बनाने वाला होता है एंड इट नेवर कट्स इट फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से थोड़ा हट के कट करता है और वो डायग्राम मैं आपको आपके बुक में दिखा दूंगी। नाउ लेट अस कम टू द नेमिंग ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, आई एम सॉरी। EcoR1 में द फर्स्ट थिंग रिप्रेजेंट्स द जीनस और वो हमेशा कैपिटल लेटर का होता है। अब ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया ई कोलाई, तो द जीनस इज एस्चेरिचिया। फिर ये जो दो स्मॉल लेटर्स है दे रिप्रेजेंट द स्पीशीज, द स्पीशीज इज कोलाई, द CO, R represents the strain,
and the strain here is RY13. Okay, and this is the Roman digit 1. This represents the sequence of discovery. Clear? अब थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री को देखते हैं. In the year 1963, two enzymes were isolated from E. coli. Okay, they were responsible for restricting the growth of bacteriophages. Bacteriophages क्या है बच्चों? The virus which attacks bacteria, right? In E. coli. Thus these enzymes, actually दो टाइप ऑफ एंजाइम थे. एक टाइप ऑफ एंजाइम था जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करके उसके एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करते थे. दूसरा टाइप ऑफ एंजाइम था जो डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर से काटता था. ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल को लेके आगे रिसर्च बढ़ी और उनको बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया. That is the history of its discovery. Now, the first restriction enzyme to be isolated was HIND2. मैं इसको हिंद 2 बोलती हूँ, but that is not right, right? H is for the genus Haemophilus, okay? IN is for influencing. D here represents the strain, and 2 is its sequence. Clear? Now, because these restriction enzymes cut the DNA, that is why they are also called as molecular seizures. Okay? अब molecular seizures ये सबसे पहले 1963 में बना था. Now let us come to the year 1972. Now 1963 में ये डिस्कवर हुआ था, एंड 1972 में two scientists, Herbert Boyer and Stanley Cohen, they discovered the full potential of these molecular seizures when they took the plasmid from Salmonella typhimurium and attached a gene that gave them antibiotic resistance. Thus, this was the construction of the first recombinant DNA. तो एंडोन्यूक्लियस की अगर डिस्कवरी नहीं होती, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता. ये वाला एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता तो शायद आज हम ये इतना पढ़ भी नहीं रहे होते, राइट? दे मेक द सेम टाइप ऑफ कट एंड the same RE has to be used for cutting the gene of interest as well as the vector. Why? Because sticky ends same होना है, तभी हम जोड़ पाएंगे उसको. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हो गया, हमने काट लिया, अब इन्हें जोड़ना भी है. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज लाइगेज. ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है. फिर एक और एंजाइम है विच इज डीएनए पॉलीमरेज. ये हमारे काम आता है टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो हम अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज. इट हैज टू बी थर्मोस्टेबल. और थर्मोस्टेबल डीएनए हमें कहां से, डीएनए पॉलीमरेज कहां से मिलेगा? फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी थर्मोफिलिक. थर्मोफिलिक मतलब जो काफी हीट, हाई हीट वाले कंडीशंस में जिसको रहने की आदत है. सच एन ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. और उससे जो डीएनए पॉलीमरेज निकलता है, इट हैज द नेम टैक पॉलीमरेज. क्लियर? एंड दिस कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स. दस एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यही हम यूज करते हैं. तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी. ओके स्टूडेंट्स, मैं कही थी कि ई को R1 को समझाने के बाद मैं उसका कटिंग का सीक्वेंस सिखाऊंगी, पर भूल गई. ये वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को कैसे काटता है.
ये फॉरेन डीएनए मीन्स दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट हियर। तो डू यू सी कि दोनों में रिकॉग्निशन साइट सेम है। अब ये यहां से अपना कट लगाएंगे, राइट फ्रॉम हियर टू हियर एंड सेम हियर। एज अ रिजल्ट हमें स्टिकी एंड्स मिल रहा है। सो ये ओवरहैंग है, ये ओवरहैंग हैज टू exactly matches, not exactly matches, is exactly the complementary of this overhang। दस लाइगेज एंजाइम के मदद से हम इसको यूं लगा पाएंगे एंड वी विल हैव अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तीन एंजाइम्स का समझ में आ गया, हाउ डू दे वर्क। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स पे चलते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर है क्या? सिलेक्टेबल मार्कर is any marker or anything that helps us in selection. Okay, so in case of genes, it can be a gene that helps us in selecting transformant from non-transformant। जेनेटिक लेवल पे ये है, नॉन जेनेटिक लेवल पे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट सिलेक्टिव मार्कर कैन बी एनी कंपाउंड, इट कैन बी थिंग्स लाइक एंटीबायोटिक्स और अ ग्रोथ मीडियम लाइक लैक्टोज। हाउ सो? इनके फंक्शंस को अब हम देखेंगे, समझेंगे और तब दीज टू थिंग्स विल बिकम क्लियर। नाउ सिलेक्टेबल मार्कर को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में, बिकॉज सिलेक्टेबल मार्कर, if you are talking of gene, if you are talking at the molecular level, then it is the gene. But if you are talking outside the molecular level, anything that helps in selection या segregation of transformant to and non-transformant is called a selectable marker। इस पॉइंट को इसीलिए याद रखना बिकॉज इसी पॉइंट पे बेस करके एक PYQ आया था एंड दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एट दैट टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड कंपोनेंट। अब इसमें नया एक टर्म जुड़ गया कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब तक हमने जो कंपोनेंट समझा, लेट्स सी हाउ डज इट एक्चुअली वर्क एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ना हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड ऑल। तो हम सोचते हैं कि दीज आर समथिंग दैट वी आर कटिंग फिजिकली। नो, साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे लेके नहीं काटते। What are molecular seizures? They are enzymes, यानी they are invisible protein molecules। अब एक्चुअल रियलिटी में होता क्या है? This is the gene of interest and this is the plasmid। दोनों को काटने के लिए in a lab they are taken in a petri dish। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखा जाता है, उसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रखा जाता है एंड अदर कंडीशंस, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, तो वहां ऑप्टिमम किया जाता है। सेम फॉर द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को रख दिया जाता है, आरई को उसके साथ रख दिया जाता है एंड द सेम ऑप्टिमम टी&सी को रखा जाता है सो दैट दे कैन डाइजेस्ट। ओके, आफ्टर सम टाइम वी गेट दीज पीसेस कट। क्लियर? अब इन्हें लाइगेट करने के लिए क्या करते हैं हम? दीज आर द प्लाज्मिड्स। कुछ प्लाज्मिड्स शायद नहीं भी कटते और दूसरे तरफ है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वन थिंग, फ्रॉम हियर टू हियर इस डीएनए के कट जाने के बाद देयर आर मेनी प्रोसेसेस टू आइसोलेट ओनली द पार्ट दैट वी नीड। वो हम प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इन दोनों को एक साथ रख दिया गया, उसके साथ लाइगेज एंजाइम रख दिया जाता है एंड देन अगेन द ऑप्टिमल टी&सी इज क्रिएटेड सो दैट दे गो एंड जॉइन विद द प्लाज्मिड्स। नाउ शायद कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे ही रह जाए और बाकी प्लाज्मिड्स में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ जाए। So after this experiment, what do we get? We get recombinant DNA as well as we see the original plasmid।
और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है? अब जब इसको होस्ट में घुसाते हैं, होस्ट भी लेट्स से ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो इसी सैंपल में वी पुट द ई कोलाई बैक्टीरिया। क्लियर है? नाउ ई कोलाई बैक्टीरिया को डालने से पहले दे आर also some treatment done to make them more acceptable of the plasmids, and then we put the different enzymes and conditions that are required here so that ये plasmid, ये vector अब इन E. coli के अंदर चला जाए। okay, now what happens, we can get E. coli या the host of 3 categories। एक वो जिसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, दूसरा वो जिसमें प्लाज्मिड आरडीएनए गया है, और तीसरा वो जिसमें प्लाज्मिड गया है विदाउट द इंसर्ट। बिकॉज हम तो माइक्रोस्कोप लेके एक एक बैक्टीरिया को वैसे चुन नहीं पाएंगे, इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस देन। नाउ दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, and these two bacteria are called transformant। तो ट्रांसफॉर्मेंट है क्या? द होस्ट सेल विद द वेक्टर। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेंट ऑल्सो हैज 2 टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट द आरडीएनए, जस्ट द प्लाज्मिड। ओके, original form में without the insert, or you can have the transformant with the rDNA, यानी the plasmid with the insert। समझ में आया what is transformant and what is non-transformant? अब आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करके कैसे यहां स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन होती है। Now there are 2 things, screening and selection। सबसे पहले we need to isolate these from this, that is called selection। छटाई कर दो, फिर छटाई के बाद इन दोनों के बीच सिलेक्शन करवा दो, and this is where selectable markers come। Now selectable markers कैसे काम करते हैं उसको समझने के लिए there are many selectable markers and many ways in which this selection is done, this screening and selection both done। हम उसको समझेंगे by the process of insertional inactivation। और insertional inactivation क्या है ये समझने से पहले PBR2 the most commonly used vector को हम समझ लेते हैं, फिर ये समझने में आसानी होगी। नाउ बच्चों कहना कि इस तरह डायग्राम से जब मैं समझा रही हूं, इज इट हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट की होता क्या है लैब में एक्चुअली। सी आई थिंक कि जब आप खाली बोल रहे थे कि वी कट इट विथ मॉलिक्यूलर सीजर्स, फ्रेगमेंट्स आर क्रिएटेड, ये वो, आप उस चीज को दिमागी तौर पे उससे रिलेट नहीं कर पाते, आप खाली उसको सुपरफिशियली याद करते जाते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, and you struggle। But once the concept is clear this way, every question, solving every PYQ will become very easy for you। okay, तो अब हम समझते हैं प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। Now students, this is the diagram of PBR322 plasmid। ये एक artificially created plasmid है। अब आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लाज्मिड है तो इसका नेचुरल सोर्स कौन सा वाला प्लाज्मिड था? नेचुरल सोर्स इज द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, ई कोलाई पे जो प्लाज्मिड्स होते हैं नेचुरली दे डू नॉट कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब आते हैं इसके नाम पे। P denotes plasmid, यहां पे B and R are the initials of the 2 scientists who discovered, and they are Bolivar
and Rodriguez. And 322 is the sequence of their discovery or their work in that lab. Thus this name. अब ये नेचुरल सोर्स क्या था? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई. तो उस बड़े से प्लाज्मिड को लेके काट छाट करके कस्टमाइज किया गया. नाउ रिमेंबर, प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई डज नॉट हैव एंटी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन नेचर, नेचुरली अकरिंग. बट इस वाले प्लाज्मिड को अब देखते हैं. सो इट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर. सर्कुलर मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स in the shape of a circle है, the double helical DNA molecule. इसमें वो जीन घुसाए गए हैं जिन which code for antibiotic resistance. Now if you see the pink portion from here to here, that is actually the gene that codes for resistance against the antibiotic tetracycline. और इसी जीन में अगर मैं इस डीएनए को खोल दूं आपके लिए, so say from this to this part you have the gene that codes for tetracycline resistance. और within this sequence कुछ साइट ऐसे हैं, and these sites are how much? 4 to 8 base pair long. 4 to 8 base pair long. कुछ डीएनए सीक्वेंसेस ऐसे हैं which are the restriction site for enzymes such as BAMHI1 and SAL1. Clear है? उसके बाद जो next gene है, this blue color gene, that is the gene called ROP. ROP. ROP gene यानी यहां से यहां तक जो भी sequence है, it all goes into the making of the gene ROP. और इसके अंदर you have the restriction site for the enzyme PVU2. ये ROP gene क्या करता है? It synthesizes proteins for replication. Then you have the ORI या origin of replication. Now this origin of replication we have to make sure that they support a very high copy number, वरना हमारा वेक्टर इनफेक्टिव हो जाएगा. हाई कॉपी नंबर मीन्स व्हाट? जो अपने खूब सारे से कॉपीज बना सके. वेरी हाई नंबर विद इन द होस्ट सेल. और लो कॉपी अगर होगा तो विद इन द होस्ट सेल दे विल मेक ओनली अ फ्यू कॉपीज. फिर हमें प्रोडक्ट भी बहुत कम मिलेगा. क्लियर? Then again, if you come to this pink part is the gene that gives resistance against ampicillin. यानी यहां से यहां तक फिर से जो DNA sequence है, they are the making the gene for ampicillin resistance. Clear? इस वाले जीन के अंदर PST1 and PVU1 का वाले एंजाइम का restriction site है. And here in this blue part, we have the restriction site for 3 restriction enzymes, EcoR1, CLAV1 and INT3. Okay? All clear? अब ये प्लाज्मिड अगर किसी होस्ट पे होगा तो that host will become resistant to tetracycline as well as ampicillin. इसीलिए साइंटिस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाते हैं. They always try to insert it in such genes which act as selectable markers. यानी the genes जिसके expression या non expression से I'm sorry, हम transformant और non transformant को अलग कर सके. Okay? Thus this gene also acts as a marker gene. And marker gene is a selectable marker. Okay? अब क्या होता है? Let's imagine हमने अपने gene of interest को यहां पे घुसा दिया. As a result, what? The sequence gets broken and tetracycline के लिए वो अब resistance नहीं कोड कर पाएगा. फिर हम उस RPB322 को किसी होस्ट पे जब डालेंगे
तो वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस कर पाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं. And using this principle, we will be separating transformant from non-transformant. How? Let's see. Now, students, selectable marker को यूज कैसे किया जाता है? The process is called insertional inactivation. यानी प्लाज्मिड पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन है वहां पे जैसे ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाते हैं, that gene becomes inactive. Thus the process is called insertional inactivation. अब हमने, this is the host cell and this is our PBR322. Okay? ये वो जगह है जहां पे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस वाला जीन था, हमने वहां पे इंसर्ट किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ एज पर द, जैसे हमने पहले समझाया, कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो वो इंसर्ट को पिकअप नहीं कर पाते एंड दे रिमेन द वे दे आर. सो नाउ वी हैव दिस मिक्सचर. अब आगे चल के क्या होगा? वी विल हैव 3 काइंड ऑफ होस्ट सेल्स. 1 जिसपे कोई प्लाज्मिड गया नहीं है, सो दिस इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. और बाकी 2 जिसमें वेक्टर गया है, दे आर द ट्रांसफॉर्मेंट. तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे, छटाई करेंगे. तो छटाई के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक द सैंपल एंड वी विल ग्रो इट इन अ मीडियम दैट कंटेन्स एम्पिसिलिन. अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, नेचुरली इट कैनॉट कोड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन. तो ये जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, दे ऑल विल डाई. These 2 will survive. Why? Because ampicillin wala gene intact hai. Now we take them and then we divide it and we put it in 2 plates जिसके मीडियम में टेट्रासाइक्लिन है. नाउ टेट्रासाइक्लिन वाला जीन खराब हो गया है, तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में जो बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, we will know that that is the transformant with our DNA. और जो ग्रो कर पा रहा है, ह्यूज कॉलोनीज बनाते जा रहा है, that is the transformant with just the plasmid or just PBR322 जिसमें इंसर्ट गया नहीं था. आ गया समझ में? नाउ हियर दिस इज द मार्कर जीन एंड द एंटीबायोटिक्स, दे हेल्प इन द एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स. दस outside of the molecular level, they also act or they also aid in acting as selectable marker. प्लीज मेरे बातों को बहुत अच्छे से समझना. एक PYQ आया था, वो मैं इस वीडियो के लास्ट या अभी दिखा दूं आपको. ओके, 1 मिनट. नाउ स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ PYQ. In recombinant DNA technology, antibiotics are used to detect alien DNA to impart disease resistance to host plant as selectable marker to keep medium bacteria free. Now, confusion student को इस और इसमें हो सकता है, because selectable markers हम जब कहते हैं, we refer to the genes which are inactivated, right? But वो तब तक तो we cannot taste unless we put the additional other part of the marker externally. अब वो जीन इनएक्टिवेट हुआ है कि नहीं, वो तो तब भी पता चलेगा जब हम एंटीबायोटिक को देंगे, right? Thus the correct answer will be selectable marker, and ideally you should call those genes as marker genes. Okay, marker genes also fall under the category of selectable marker, and that is why selectable marker is defined in your books as anything that helps in selecting or selecting the transformant from non-transformant.
नाउ स्टूडेंट्स को बहुत बार ये वाला ऑप्शन सही लगता है, बट मार्कर जीन हो या एंटीबायोटिक हो, दे डोंट डिटेक्ट द डीएनए, एलियन डीएनए है कि नहीं, वो खाली छन्नी का काम करते हैं। दे ओनली डू द जॉब ऑफ सिलेक्शन, दे जस्ट एक्ट एज अ स्क्रीन। ओके, so this is, although it is very confusing, but this is not the right answer. Now going back to the flow of the video, तो ये हमने समझ लिया। Now this method is a bit cumbersome because यहाँ पे 1 2 3 प्लेट्स पे उसको प्लेटिंग करना होता है and so on. There is another example of insertional inactivity. Now next वाला example है insertional inactivation of the LAC-Z gene. इसमें जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है दैट इज PUC19. नाउ द दिस PUC19 हैज वन जीन दैट कोड्स फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और एक दूसरे तरफ वो जीन है विच इज LAC-Z जीन. नाउ LAC-Z जीन इट कोड्स फॉर व्हाट? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, एंड लैक्टोस इज द इंड्यूसर. अब normally when an E. coli bacteria is growing in a medium that contains lactose, it gives blue colonies. Now हम LAC-Z वाले जीन पे ही अपना GOI घुसा के क्या कर दे रहे हैं, इसको इनएक्टिव कर दे रहे हैं. ओके, तो हाउ विल वी यूज दिस फेनोमेनन? हमारे पास वापस फिर से वही 3 तरीके के होस्ट सेल है आफ्टर इंक्यूबेशन विद द वेक्टर. 1 द रेगुलर प्लाज्मिड जिसमें दोनों के दोनों जीन्स इंटैक्ट है, और एक जिसमें कि ये LAC-Z जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो एम्पिसिलिन में डाल, पूरे सैंपल को डाल दो जो मर गए, एलिमिनेट देम. देन यू जस्ट पुट लैक्टोज इन द मीडियम. लैक्टोज में द वंस दैट विल गिव ब्लू कॉलोनीज, उनका LAC-Z जीन इंटैक्ट है, सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज देम. दे आर द ट्रांसफॉर्मेंट, but transformant not with the rDNA. And the ones which are giving colorless colony, they are the transformant with the rDNA. Clear है? This method is said to be less cumbersome because यहाँ पे एक ही बार में आप डाल देंगे एक ही प्लेट में, तो you can pick up the blue and the colorless colonies, you can separate them. ऑल क्लियर अबाउट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर से अपना एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली कैरी कर सकते हैं, एंड व्हाई दिस सिलेक्शन इज नेसेसरी, बिकॉज हम उस इन सेल्स को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करके इससे हमें कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है. दैट इज व्हाई वी नीड टू एलिमिनेट देम. ओके, अब एक और बात जो रह जाती है वो ये है कि वेक्टर को हम जब होस्ट में घुसाते हैं, द होस्ट इज नेवर इन अ वेलकमिंग मूड. तो होस्ट को हमें तैयार करना पड़ता है. वी नीड टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट. तो हाउ डू वी मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट? दिस इज ऑल्सो अनदर कंपोनेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, लेकिन मेथड्स को जानने से पहले एक बात है कि व्हाई डू वी नीड टू मेक इट कॉम्पिटेंट? होस्ट का जो मेम्ब्रेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक, और डीएनए जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक. नेगेटिव चार्ज, इसीलिए वी नीड टू मेक सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन सो दैट डीएनए को घुसा पाए. There are 4 methods. First is treatment with calcium ions. यहाँ पे the host cell is first treated with divalent. कैल्शियम के आयंस डाइवेलेंट ही होता है, 2 पॉजिटिव साइन से ट्रीट किया जाता है, and then the vector is added, and then they are incubated first in ice cold temperature. ठंडा हो गया, it is heated up to 42 डिग्री सेल्सियस, एक्सपैंड कर गया, फिर से इसको
आइस टेम्परेचर में लाके कोल्ड किया जाता है। एज अ रिजल्ट व्हाट, मेम्ब्रेन में जो पोर्स है दे बिकम रिसेप्टिव ऑफ द कैल्शियम आयंस, और जो ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्स बने हैं कैल्शियम वहां से घुसता है और कैल्शियम के सर पे चढ़ के ये वेक्टर्स भी अंदर घुस जाते हैं। क्लियर? द अदर मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल सेल्स, और यहां पे अ माइक्रो इंजेक्शन से it is directly given into the nucleus of the animal cell. The vector is directly pushed into the nucleus of the animal cell. Third is biolistic gun. इस गन से गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स शूट होते हैं बहुत हाई वेलोसिटी में, लेकिन उन गोल्ड पार्टिकल्स और उन या टंगस्टन पार्टिकल्स में हम अपना वेक्टर चिपका देते हैं, एंड हाई वेलोसिटी पे जब वो शूट होता है इट गोज और प्लांट सेल के मेम्ब्रेन्स के अंदर ये घुस जाता है। बायोलिस्टिक गन इज यूज्ड फॉर प्लांट सेल्स। ओके, देन अनदर मेथड is use of tumor inducing plasmid of a bacteria called Agrobacterium tumefaciens. ये जो प्लाज्मिड है, दिस प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर लाइक ग्रोथ इन मेनी डाइकॉट्स एंड इट बिलोंग्स टू दिस बैक्टीरिया। तो पहले उस प्लाज्मिड को लिया जाता है, उससे उसकी, जैसे कहते हैं ना सांप के जहरीले दांतों को निकाल देना, वैसे ही उसको डिजार्म किया जाता है सो दैट इट डज नॉट इंड्यूस ट्यूमर लाइक चेंजेस। इस पीटीआई में वी पुट आवर डीएनए, ये एक वेक्टर बन गया। अब इसको हायर प्लांट्स पे वी पुट। देन अनदर मेथड is use of disarmed retrovirus, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। ओके, रेट्रोवायरस उसकी विरिलिटी को निकाल देना, फिर उस पर अपना डीएनए डालना और उसको एनिमल सेल के अंदर दे देना। सो विद दिस वी आर डन विद द कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू नो बिफोर वी नो द प्रोसेस। अब हम प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरडीएनए पे चलते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, प्रोसेस में सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यहां पे कुछ स्टेप्स है जो हमें जानना है। नाउ फर्स्ट, आइसोलेशन में क्या होता है, वी हैव द सेल जहां से हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। नाउ दैट सेल कैन बी अ प्लांट सेल, एन एनिमल सेल, अ बैक्टीरियल सेल और अ फंगल सेल। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड इट इज ऑल्सो, इसके ऊपर इसके चारों तरफ देयर आर मेनी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन्स। क्लियर? तो वी नीड टू आइसोलेट इट, यानी इस मेम्ब्रेन को तोड़ना है, इस मेम्ब्रेन को तोड़ना है, और जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल एसोसिएटेड है उनको तोड़ना है। सो फॉर आइसोलेटिंग, for removing the membranes, if it is bacteria we treat it with lysozyme. Lysozyme peptidoglycans के बॉन्ड को तोड़ता है and it disintegrates it. Clear? प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज, फंगस के लिए काइटिनेज, बिकॉज यहाँ सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है, यहाँ पे काइटिन का। एनिमल सेल अगर हो तो वी यूज लाइसोसोम। रिमेंबर दिस इज अ सेल ऑर्गेनेली, क्लास 11 में पढ़ा था, एंड प्लीज टेल मी इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉट। They contain hydrolytic enzymes such as nucleases and proteases. Then to get rid of RNA we use RNase, जो सेल के अंदर RNA होता है, and to get rid of the proteins we use proteases. हो गया?
आइसोलेशन, अब आइसोलेशन के बाद वी हैव द प्योर डीएनए, बट दिस डीएनए इज नॉट विजिबल टू अस। तो इस डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए वी एड चिल्ड ethanol, and after that the DNA precipitates in the form of white thread. Okay, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। डन, डीएनए हो गया, आइसोलेट हो गया, अब उसको काटेंगे। तो एक तरफ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे, दूसरी तरफ हम वेक्टर को काटेंगे। वी विल यूज द सेम RE, same RE. Clear? Now we get the fragments, और यहां पे प्लाज्मिड का मुंह खुल गया। Now here जीन ऑफ इंटरेस्ट एक लंबे से डीएनए मॉलिक्यूल से हमने काटा है। Now when we cut, let's presume कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे था। तो जब वो काटता है बहुत सारे से फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। We need to take out only this fragment. तो यहां पे to separate this, we have a method called gel electrophoresis. Gel electrophoresis में क्या होता है? Now students, this is the gel electrophoresis board. यहां पे we put a gel which is agarose gel. Okay? These are the DNA wells. यहाँ पे हम अपना DNA samples डाल देते हैं and we run electricity across. ये जो है इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड। और ये जेल जो होता है दैट इज एगारोस जेल, एंड एगारोस जेल को लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, देन इट गिव्स इट अ जेल। सॉलिडिफाई तो नहीं होता बट जेल फॉर्म में जब रहता है, इट हैज मेनी पोर्स एंड दिस पोर्स एक्ट एज द सीव जिसके थ्रू वो डीएनए मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करता है। टू फैक्टर्स, एक तो है द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगारोस जेल, दूसरा है द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नाउ अगर हमको एगारोस जेल के पोर्स के साइज चेंज करने हो, वी हैव टू चेंज द कंसंट्रेशन। The more concentrated it is, the छोटे छोटे pores, the lesser concentrated it is, बड़े बड़े pores. Okay. Now DNA sample को यहाँ पे डाल दिया गया, electricity is run. DNA is negatively charged, so it has a tendency to go towards the positive charge. और जितना इसका size small होगा उतना दूर तक ये जाएगा। After it has traveled, all the pieces are separate. We dye it with ethidium bromide and then expose it to UV rays. तब ये सारे strands जो है they become visible as orange strands. Okay? Otherwise ये visible नहीं होते। फिर इसको उस एगारोस जेल से काट के निकाला जाता है और यहीं पे खाली हमारे इंटरेस्ट वाले टुकड़े को ही काट के निकाला जाता है। And that process is called elution. हो गया? Now what happens is next step is amplification of gene. Amplification of gene में most of the time the gene of interest is amplified. Why? Because बहुत मुश्किलों के बाद ही हम काट छाट के उस gene of interest को निकाल पाते हैं। दूसरे तरफ for our experimental purposes the plasmid जो यूज करते हैं वो तो artificially made लैब में रहता ही है। Okay? But in some cases, the rDNA can also be amplified. But mostly it is the GOI. अब amplification के लिए the process that is used is called PCR, polymerase chain reaction. Why need to amplify the gene of interest? Because इसका sample हमें बहुत थोड़ा सा मिलता है। Now, polymerase chain reaction के 3 steps हैं। First step is denaturation. Okay, step को समझने से पहले we have the sample, the gene of interest. We need multiple copies. Multiple copies कैसे होगा? When we can induce many cycles of replication.
अब रेप्लिकेशन ऑफ जीन तभी हो पाएगा व्हेन वी विल बी एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड. So how do we do? And that is the first step, denaturation. DNA is heated to 94 to 95 degrees Celsius. Hydrogen bonds break. Denatured हो गया. अब हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रैंड है. नेक्स्ट स्टेप इज एनीलिंग. यहां पे आरएनए पॉलीमर वो भी लैब में होता है. दे आर गिवन. Along with it, many ATPs and DNTPs are given. RNA polymer, which is 4 to 12 base pair long, वो आके लग जाते हैं. They give the free 3OH and this process is called annealing. और इस process को करने के लिए the temperature is lowered to 50 to 55 degrees Celsius. Now the next and the last step, which is extension. इस स्टेप के लिए टेम्परेचर को वापस बढ़ा दिया जाता है to 72 degrees Celsius. And that is why the DNA polymerase enzyme, which is responsible for the synthesis of the new DNA strand, हमें वो heat stable DNA polymerase चाहिए. And that is why we take the DNA polymerase, which is Taq polymerase. Okay, let me write it here. Taq polymerase. नए स्ट्रैंड्स को करते हैं, नए स्ट्रैंड्स को फिर सिंथेसाइज कर देते हैं यहां से. And this cycle is repeated many times to get almost like billion copies of the DNA. Or how will you find out? The formula is 2 to the power of n. For n number of cycle, we will have 2 to the power n number of copies. Clear? तो हमने एम्पलीफाई भी कर लिया. अब हमारे पास rDNA रेडी है. ओके नाउ ओके मैं एक बात कहना भूल गई. कटिंग के बाद लाइगेट करते हैं. लाइगेट के लिए लाइगेज होता है. नाउ या तो इसको एम्पलीफाई करके फिर लाइगेट किया जाता है या इस वेक्टर को लाइगेट करके फिर एम्पलीफाई किया जाता है. बट दिस इज द मेजॉरिटी थिंग. एंड लाइगेशन के लिए वी यूज द एंजाइम लाइगेज. ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ द rDNA इनटू द होस्ट सेल. जैसे इंसर्ट करेंगे बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू दोस ट्रीटमेंट्स जो अभी हमने देखा है. इंसर्ट हो गया, ग्रोथ भी हो गया काफी सारे से. नाउ वी टेक द सैंपल एंड वी डू द सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग. अब जो फाइनल स्क्रीन के बाद जो कल्चर हमारे पास होता है हम उसको ग्रो करते हैं. एंड देन वी ऑब्टेन द जीन, प्रोडक्ट ऑफ द जीन. प्रोडक्ट ऑफ द जीन विच इज मोस्टली अ प्रोटीन. फिर उसको प्रोसेस किया जाता है. एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द नेक्स्ट लेग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. क्लियर? नाउ जब हम इसे ऑब्टेन करते हैं, नो बिटवीन दिस एंड दिस वी नीड टू ग्रो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एवरीथिंग. इन द लैब तो हम छोटे सैंपल्स में करते हैं. बट इन द फॉर कमर्शियल पर्पसेस वी डू इट इन लार्ज बायोरिएक्टर्स विच आर लार्ज टैंक्स, कैपेसिटी लाइक 100 लीटर्स. और हमारे पास दो तरीके के, मैं यहां पे दिखाती हूं आपको बिकॉज यू ऑल विल बी मैं यहां पे दिखाती हूं बिकॉज यू विल बी मोर यूज टू दिस डायग्राम. और हमारे पास दो तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं, कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100 लीटर्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर. नाउ ये दोनों ही जो है दैट इज फॉर एरोबिक कल्चर. Okay, we have to maintain a sterile condition and we need to give nutrients for the host cells to grow and we need to maintain the optimum temperature and the pH. तो ये जो बायोरिएक्टर है इसका बेस कर्व होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. फिर इसमें ऊपर एक मोटर होता है और यहाँ पे एक फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होता है, मिक्सर जैसा यूं घुमाने के लिए.
एक इनलेट होता है टू पुट एसिड या बेस टू मेंटेन द पीएच। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन को घुसाने के लिए भी एक इनलेट होता है, एंड स्टेराइल एयर को देने के लिए भी होता है। नाउ द कल्चर ब्रॉथ इज गिवन एंड ऊपर वी हैव द फोम ब्रेकर। जब घुमाते हैं अगर खूब सारा सा फोम होता है। नाउ यहां पे रेगुलरली द कल्चर ब्रॉथ इज गिवन, पीएच, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज मेंटेन, और इस ब्लेड को घुमाया जाता है टू क्रिएट एरेशन। पीरियडिकली यहां से कल्चर मीडियम को निकाला भी जाता है सो दैट न्यूट्रिएंट्स तो यूज अप हो जाता है फॉर द फ्रेश न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ इसी टैंक का मॉडिफाइड वर्जन है स्पार्ज टैंक। स्पार्ज मीन्स व्हाट? हम जैसे डीओ को जब स्प्रे करते हैं तो उससे बहुत फाइन बबल्स निकलते हैं ना, फाइन एरोसोल निकलता है। इस टैंक के नीचे भी एक स्पार्जर लगा हुआ है जहां से वेरी फाइन ऑक्सीजन बबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इसका एडवांटेज ये है कि द ऑक्सीजन बबल्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। एरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली होता है, एंड ऊपर जाके दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। क्लियर? नाउ कोई सा भी बायोरिएक्टर यूज करें, वी गेट द प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू देयर? वी नीड टू प्यूरिफाई इट ऑफ एनी अदर कंपोनेंट अगर लगा हुआ हो, वी नीड टू प्रोसेस एंड वी नीड टू पैक for it to be available for human use. And the combination of these three steps is called downstream processing. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को पढ़ने के साथ साथ ही हमारा बायोटेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग यहीं पे खत्म होता है। ओके, नाउ वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर हैंड फॉर कमर्शियल और ह्यूमन यूज। नाउ बच्चों, जिसने इस वीडियो को पूरा देखा हो, यहां तक देखा हो, प्लीज बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई एम रियली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इस वाले चैप्टर के लिए एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, आपको पूरा पिक्चर आपके दिमाग में बिठा पाऊं। मैं वो कर पाई हूं कि नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द वीडियो अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।